नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 डेसिमल्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट डू यू मीन बाय डेसिमल्स। डेसिमल क्या है? The word decimal comes from the Latin word decim, and the meaning of decim is 10. Okay? तो ये डेसिमल जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड डेसिम से आया है और इसका मीनिंग होता है 10। अब इस 10 का क्या वर्क है, चलिए आइए उसको भी देखते हैं। एवरी डेसिमल हैज टू पार्ट्स, होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट्स। जो भी डेसिमल नंबर होगा उसके टू पार्ट्स होंगे, एक तो होगा होल नंबर और दूसरा होगा डेसिमल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल 824 एंड आफ्टर दैट डेसिमल 325. So here is two parts. One part is whole, that is 824. This 824 is the whole number, and 325, this is the decimal number. Why? Because this is comes just after the decimal, and this decimal, this is the symbol, is sharp dot. This is known as the decimal and read as point. So this number is read as 824.325. Okay, and this number is also read as in the second form 824 and 325,000. You can say here, and 3 is the 10th place digit, and 2 is the 100th place digit, and 5 is the 1000th place digit. So we will write here thousands after reading this number, that is 325 thousands. Okay, so every decimal number can be read as in two form. First one you will read, that is whole number 824, and after that the decimal number, so you will read is 0.325, one by one all digits. And after that in the second form, if you not want to read one by one digit, then this is necessary to tell how many parts after the decimal. So this is the 3 is the 10th, and 2 is the 100th place digit, and 5 is the 1000th place digit. So you can read it as 824 and 325 thousands. Okay, so now moving for next things, that is place value table. Means here you can see that this is the place value table. You are here, this is the 1, okay, ones, and this is the left hand side tens, and this is the hundreds, and in the right hand side of 1, this is the tens. So tens is denoted by 1 by 100, and hundreds, this is denoted by 1 by 100, and thousands, this is denoted by 1000. It means of these tens, 100 and 1000 means टेंस मीन होता है कि कोई भी वन ऑब्जेक्ट है उसके 10 पार्ट्स किए गए हैं, उस 10 पार्ट्स में से 1 पार्ट को सिलेक्ट किया गया है. सो दिस इज राइटिंग एज 1 by 10. एंड 100 मीन्स यू हैव ए ब्लॉक, आपको एक ब्लॉक दिया गया है और उसमें 100 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, और उसमें से एक स्मॉल स्क्वायर्स आपको 1 स्मॉल स्क्वायर्स आपको दे दिया गया. So this is represented at 1 by 100 and read that 100th.
okay, and thousands means you have a block in which 1000 small blocks are lies, okay। एक ब्लॉक आपको दिया गया है जिसमें 1000 ब्लॉक हैं और एक ब्लॉक उसमें से आपको दे दिया गया। दिस ब्लॉक इज रीड एज 1/1000 and also write as 1/100. For example, you have this number 243 and 0.25. So how can you write this number in the place value table? Yes, you can write it as this. That is 2. This is the 100 place digit. So you can write this into the 100. And 4. This is the 10th place digit. So you can write in the tens. That is 4 tens. And 3. This is the unit place digit. That is the ones place digit. So you can write this into the ones place column. That is 3. And point. This is the decimal. And this 2. This 2 is just lies on the place of tenths. So you can write how many tenths? 2 only. And this 5 is the 100th place digit. So you can write this into the column of hundredths. So every number you can write in the place value table as you seen just here. Okay, now moving for next decimals हम लोग पढ़ रहे हैं। Meaning of 1/10, this is represented as 0.1 and says that 10th. Okay, and now meaning of 1/100, this is write as 0.01 and read as 100th. After that, meaning of 1000, 1/1000, this is 0.001 and read as thousands. Okay, so dear, in simple way you can say here is the single zero, so you will get the decimal before one digit. Okay, and here is the 20, so here you will get the decimal before 2 digit. And in the third step you get here 3 zeros in the denominator, so you will get the 3 decimal digits before decimal. Okay, I think that latest number is 6543। ये हमने कोई नंबर लिख लिया, ठीक है। अब इसका प्लेस वैल्यू देखिए, यहां पे इसका प्लेस वैल्यू आपका हो जाएगा 6000। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये 1000 प्लेस पर है। इसके बाद फिर हमने इसी नंबर को चेंज करके ये ऐसे लिख दिया 5643 और इस समय इसका प्लेस वैल्यू 600 हो जाएगा। फिर हमने इस नंबर को चेंज करके लिख दिया 5463। अब ये 10th प्लेस पर है तो इसलिए इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 10 और लास्ट में हमने इसको ऐसे लिख दिया 5436। अब ये 1st प्लेस पर है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6। ये सभी क्या है? प्लेस वैल्यू। अब देखिए कि ये जो 6000 था इसका हमने 1/10 कर लिया तो आपका कितना हो जाएगा? ये 600 और इसी का हमने 1/100 कर दिया तो ये हो जाएगा 60 और इसी को हमने 1000 कर लिया तो ये आपका हो गया केवल 6। ठीक है, तो इस नंबर को हम बोलते हैं 10th और इसको बोलते हैं 100th और इस नंबर को हम बोलते हैं 1000। अब आप डिफरेंस समझिए अच्छे से। ये 1000 लिखा है, इसमें डी वर्ड यूज हुआ और टीएच भी है, तो ये 1000 होता है। ये नंबर जो आपका है वो होता है 1000
ठीक है। और इसमें हमने टीएच लगा दिया तो ये हो जाता है 1/1000। तो इसको थाउजेंड्स बोलते हैं जब टीएच लगा देते हैं। आप अच्छे से जानते हो ये नंबर क्या है, 10। और 10 में जब हम टीएच लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, 1/10। इसीलिए ये 100 है और 100 में हमने 1/10 लगा दिया तो ये 100 तो हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये 10 का डिफरेंस आ रहा है। जो मैंने बताया था ना कि डेसिम का मतलब होता है 10, और यहाँ पे देखिए 10 का डिफरेंस आता चला जा रहा है। अब आप इसे और अच्छे से कैसे समझ पाएंगे, जो नंबर होता है वो क्या होता है, डेसिमल नंबर हैज 2 parts. One is whole parts and second one is the decimal part. तो यहाँ पे इसके 2 पार्ट होते हैं, होल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक कोई भी नंबर लिख दिया। मान लीजिए कि ये नंबर हमने लिखा, कोई भी लिख लेते हैं, 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल दैट इज 334.567। तो इसमें 34 आपका होल पार्ट होगा और 0.567 ये आपका डेसिमल पार्ट होगा। और पूरे होल नंबर को हम क्या बोलेंगे, दिस इज द डेसिमल नंबर। ठीक है। तो अभी और आगे पढ़िए, फिर हम आपने जो पूछा था उसके विषय में भी बताएंगे। सो दिस इज द decimal number having 2 parts, one is the whole and second is the decimal part, and is so dear, let us, this is a table and this row is divided in parts, that is 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने इसे डिवाइड कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ध्यान देना। हमने यहाँ पे लिखा दिस इज वंस। ओके, आफ्टर दैट 1 को आप कैसे लिखते हो, इस तरह से 1, दिस इज 1। एंड देन टेंस, यहां पे क्या आ जाएगा आपका, 1 के बाद फिर आता है टेंस, और टेंस को आप लिख सकते हो इस तरह से। इसके बाद यहां पे आता है 100, और हंड्रेड्स को आप लिखते हो 100। इसी तरह से इधर बैक साइड में और चलेंगे तो आपका आएगा 1000, 10,000 कंटिन्यू रहेगा। और अब आप देखिए राइट हैंड पे क्या आता है, 10th। और आगे आपका होता है हंड्रेड्स, और यहां पे होता है 1000। तो ये आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 10th को कहा जाता है 1/10, और 100 इज रिटन एज 1/100। टीएच लगा हुआ है इसलिए 1/, और यहाँ पे 1000th का मतलब होता है 1/1000।
तो इस तरह से हम टेबलर फॉर्म में इसे कन्वर्ट करते हैं, टेबलर फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए कि यहां पे आपको एक नंबर दिया हुआ है 257 एंड 32। 200, हमने एक एग्जाम्पल लिया, लेट 257.32। तो अगर आप इसे डेसिमल फॉर्म या टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। आप इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, आप देखिए यहां पे ये क्या है आपका 100। तो 100 की जगह पे आप इसे लिखेंगे, दैट इज हियर यू विल राइट 2 एंड 5 टेंस है तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे, और 7 वंस है तो आप यहाँ 7 लिखेंगे। इसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, ये फर्स्ट प्लेस डिजिट है आफ्टर डेसिमल, तो ये टेंस है। कितने टेंस है यहाँ पे, 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख दोगे। और इसके बाद ये क्या है, सेकंड प्लेस पर 100th है, और 100 को आप यहाँ पे लिख दोगे। और इसके बाद 1000 नहीं है तो आप यहां चाहो तो 0 लिख दो, या फिर ब्लैंक भी रहने दे सकते हो। हम आपको बताते चलें, 0 का डेसिमल के बाद कोई भी मीनिंग नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा, लेट अनदर एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट्स टॉकिंग, कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं। इसमें विनय ने अपना माइक्रोफोन ऑन कर लिया है, पुट अप योर माइक्रोफोन। यस, ओके। तो मैं आपको बता रहा था, इफ यू पुट हेयर 1 0 देन दिस 0 इज मीनिंगलेस। एक और 0 रख लो, कितने भी 0 रख सकते हो, दीज ऑल जीरोज आर मीनिंगलेस। ये सारे के सारे 0 मीनिंगलेस हैं। क्यों है, क्योंकि आपने इसे डेसिमल प्लेस के बाद पुट किया है। लेकिन अगर इस 0 को आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख देते हैं, लेट अस दिस इज 9, then these all zeros are meaningful। अब ये 0 मीनिंगलेस नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक डिजिट भी लिखा हुआ है, तो अब ये पूरा एक नंबर हो गया। लेकिन अगर यहाँ डिजिट नहीं है, देन ऑल द जीरोज आर मीनिंगलेस। अब इनका कोई मतलब नहीं, आप इन्हें सभी को रफ भी कर सकते हैं, या फिर आप 2-4 जीरो यहाँ और भी पुट कर सकते हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, सो दिस टाइप यू कैन रिप्रेजेंट। अगर हम इसी नंबर को इस टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा, 2000, और यहाँ पे 1000 का प्लेस नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये 2 यहाँ पे आगे जो आएगा वो 1000 होगा, और 500 है तो वो 100 के पास लिखेंगे, और 8 आपका टेंस है तो टेंस वाले कॉलम में लिखेंगे, और वंस आपका ये 9 है तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, टेंस आपका है 3 तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 5 आपका 100 है तो यहाँ पे 100 के कॉलम में लिखेंगे, और 7 आपका थाउजेंड्स है तो यहाँ पे थाउजेंड्स के कॉलम में लिखेंगे। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप इस तरह से टेबुलर फॉर्म में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपका कोई भी यहाँ पे मिस्टेक नहीं होगा। आपको यहाँ पे टेबल को याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे आपका 1000 होता है, यहाँ 100, यहाँ पे आपका ए हु इज टॉकिंग देयर, नॉट टॉकिंग अलाउड, योर पुट अप योर माइक्रोफोन। आप अपना माइक्रोफोन बंद करके रखिए।
आपकी बातें सब लोग सुनेंगे या फिर कुछ पढ़ाई से संबंधित बातचीत होगी? तो यहाँ पे देखिए 8, यहाँ पे आपका क्या है, वंस। ये चीज को याद रखेंगे, वंस के आगे टेंथ होता है, टेंथ। और यहाँ हंड्रेड्थ, इधर में थाउजेंड्थ। जैसे आप राइट हैंड की तरफ बढ़ेंगे सभी में टीएच लगेगा। थाउजेंड के बाद में आगे नंबर जो आएगा वो 10,000th। और जब आप लेफ्ट साइड में चलेंगे तो वहां पे क्या आएगा, टेंस, एस लगेगा केवल, हंड्रेड्स। राइट। हाउ टू रीड डेसिमल नंबर। ये आपका कोई क्वेश्चन है कि आप इस नंबर को किस तरह से रीड करेंगे और किस तरह से इसे हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, कोई भी हमने एग्जाम्पल ले लिया। लेट अस, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1, लेट 1 17.25। ये आपका कोई नंबर लिखा हुआ है, अब इसे आपको रीड करना है या फिर अपनी कॉपी में वर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले इसको होल पार्ट को आप रीड करेंगे और फिर डेसिमल पार्ट को भी रीड करेंगे। तो देखिए किस तरह से हम इसे रीड करेंगे। यस, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये होल पार्ट है, दिस इज होल। तो इसको आप डायरेक्ट पढ़ेंगे 17, तो आप यहाँ पे लिखेंगे भी 17। ओके, ये तो 17 कंप्लीट हो गया। इसके बाद में फिर क्या है, ये पॉइंट लगा हुआ है, ये दिस इज द नोटेशन ऑफ डेसिमल। तो ये पॉइंट है, इसको आप फिर यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट। और इसके बाद फिर जो डिजिट लिखे हुए हैं वो डिजिट हैं आपके 2 है और उसके बाद 5 है। 2 आपका 10th प्लेस पर है और ये 500th प्लेस पर है। अभी किसी स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर इन डिजिट को हम 1 by 1 क्यों पढ़ते हैं, तो आप समझने की बारी आ गई। देखिए ये 2 आपका होल नंबर नहीं है, ये आपका 10th प्लेस है। 10th प्लेस का मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज को, थिंग्स को, ऑब्जेक्ट को आप उसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और उसका एक पार्ट ले लीजिए, वन पार्ट यू विल सेलेक्ट, देन दैट पार्ट इज नोन एज 10th। उसी को हम 10th कहते हैं। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए हमने यहां पर एक ये लाइन बना ली और इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके 10 इक्वल पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब 10 इक्वल पार्ट्स में ध्यान दीजिए कि इसमें मैंने इस पार्ट को कलर कर दिया, शेड कर दिया, तो ये पार्ट आपका होगा 10th पार्ट, 10th, ठीक है। इसी पार्ट को आप कहेंगे 10th पार्ट, जिसे हम लोग, यहाँ पे डी नहीं होता है, 10th होता है, 10th। तो ये आपका हो जाएगा 1 by 10। क्या था, टोटल 10 पार्ट्स थे और उसमें ये 1 पार्ट शेडेड है, तो इसीलिए ये पार्ट आपका 1। और ये क्या था, ये कोई वन होल थिंग्स थी, वन ऑब्जेक्ट था और उस ऑब्जेक्ट को आपने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो ये वन पार्ट का, वन किसी भी वन ऑब्जेक्ट का 10th पार्ट है, इसीलिए इसको 1 by 10th और 10th कहा जाता है। तो हम यहाँ पे इसे 2 नहीं पढ़, 25 नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 25 पढ़ने से क्या हो जाएगा, दीज आर द 25 थिंग्स, 25 ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये 25 चीजें हो जाएंगी और आपके पास 25 चीजें नहीं हैं, किसी भी एक चीज को डिवाइड कर दिया गया है। तो ये 2 क्या हो जाएगा, ये 2 आपका 2 ऑब्जेक्ट हैं और 2 ऑब्जेक्ट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहां पर इसका मीनिंग हो जाएगा कि हम यहाँ पे वही चीज यहाँ पे लिखी है, पॉइंट 2। पॉइंट 2 का मतलब हुआ कि
आपका ये 10th पार्ट है, किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग्स का 10th पार्ट है, इसीलिए आप इसे 1/1 डिजिट पढ़ते हैं, एक साथ 25 नहीं पढ़ते। अगर आप इसे 25 पढ़ देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू हैव 25 ऑब्जेक्ट, आपके पास कोई भी 25 चीजें हैं, तो वो गलत हो जाएगा। शो कर रहा है कि किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग्स है, उसके 2 पार्ट्स आपको दिए गए हैं, तो उसी को आप लिखेंगे 2/10, और इसीलिए इसे 1/1 डिजिट पढ़ा जाता है। अब ये नंबर देखिए, यहाँ पे 5 लिखा है, तो 5 का मतलब ये आपका किस प्लेस पर है, 100th प्लेस पर है। पहले आता है 10th और फिर आता है 100th, तो इसका मतलब हुआ कि कोई पर्टिकुलर थिंग्स है और ये 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है, और उस 100 पार्ट्स में से आपको सिंगल ये 5 पार्ट्स दे दिए गए हैं, तो इसीलिए ये पॉइंट के बाद है, और इसे 0.25 पढ़ा जाएगा। जैसे ही आप 0.25 बोलेंगे, तो जैसे ही 2 के बाद 5 बोलेंगे, तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि 100 को, जो भी एक चीज है उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उसके 5 पार्ट्स आपको दे दिए गए हैं, तो वो आपका 5 पार्ट्स होगा। इसी को आप तो यहाँ पे लिखेंगे 0.25 5, और यहां इसे 25, you can write it as 17, again you can read it as 17, this is the whole number, ये तो चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा 17, और इसके बाद का जो डिजिट है 25, उसे आप 25 भी कह सकते हो। कब कह सकते हो, चलिए आपको बता देते हैं कि आप इसे 25 कब कह सकते हो। यहां पे आप लिखोगे 17 एंड 25, और ये देखिए कहां तक आया है डिजिट, 100th तक आया, तो आपको यहां पे लिखना होगा 100th। अब आप 25 भी लिख सकते हो, लेकिन आपको उसके आगे 100th लिखना पड़ेगा। मीन्स इसका मतलब हुआ कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था, उसका 100th पार्ट आपको दिया गया, तो ये 25 100th पार्ट है, ठीक है। तो इसे आप अगर 100th लिख देते हो, पुट ऑफ योर माइक्रोफोन, माइक्रोफोन को आप म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है। ओके डियर, तो अभी आवाज इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बोल नहीं रहा था। चलिए, तो ये आपका हो गया। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इज दैट इज 8.527, ये मैंने कोई नंबर लिख लिया, ठीक है। अब आप इसे दो फॉर्म में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ये पहला फॉर्म था, ये दूसरा। अब इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, 8, दिस इज द होल नंबर, सो यू राइट इट एज 8, और इसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, फिर इसके बाद 5 है तो 5 लिख देंगे, उसके बाद 2 है तो 2 भी लिख देंगे, और लास्ट में 7 है तो 7 भी लिख देंगे। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से आप इसे बोल भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, 8.527। और इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो, 8 तो होल नंबर है तो ऐसा ही रहेगा, 8 आपने लिख लिया। इसके बाद ये क्या है, आप सीधा नंबर पढ़ो, वंस, टेंस एंड 100, ओके। तो आप सीधा लिखिए 500 and 227,
लिख लिया आपने 527। और यहाँ पे एक चीज छूट गई है, पॉइंट मैंने नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पे पॉइंट भी लिखेंगे। और यहाँ पे पॉइंट क्या, एंड लगाएंगे, एंड। और यहाँ पे भी आप देखिए मैंने एंड लगाया था, नहीं लगाया, यहाँ भी एंड लगेगा, AND, एंड। और ये आपका हो गया 527। अब आप बताओ कि ये 5 किस प्लेस पर है। आप देखिए कहां तक जाएंगे, ये आपका होगा बंस, सॉरी टेंस, टेंस के बाद हंड्रेड्थ, हंड्रेड्थ के बाद आपका क्या आएगा, थाउजेंड्स। तो यहां पे आप इसके आगे लिख देंगे थाउजेंड्स। अब आपका ये आंसर सही हो गया। क्या लिखोगे, 8 एंड 527 थाउजेंड्स। मतलब ये थाउजेंड में 527 पार्ट आपको दे दिए गए हैं। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो एक बार फिर समझ लो कि जो आपने पूछा था कि इसे 1 बाई 1 डिजिट क्यों पढ़ते हैं। 1 बाई 1 डिजिट पढ़ने का मतलब ये होता है कि ये आपका होल नंबर नहीं है, ये आपका डेसिमल नंबर है। और ये डेसिमल नंबर का मतलब है कि यहाँ पे जो 5 लिखा है या यहाँ पे जो 2 लिखा है, ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। उस 10 में से आपको यहाँ 5 दे दिए गए और इस 10 में से आपको 2 दे दिए गए हैं। तो ये होल नंबर नहीं है, किसी भी एक चीज के पार्ट्स थे वो आपको दिए गए हैं। इसीलिए आप इसे 1 बाई 1 डिजिट पढ़ेंगे, होल नहीं पढ़ेंगे। अगर आप होल पढ़ देंगे तो इसका मतलब ये होल फिक्स हो गया। 527 अगर आप डायरेक्ट पढ़ देते हो तो इसका मतलब आपको 527 थिंग्स, 527 ऑब्जेक्ट आपको दे दिए गए हैं। लेकिन अगर यहाँ डेसिमल लगा है तो वो शो नहीं कर रहा है, वो ये बता रहा है कि थाउजेंड्स में से जो 1000 पार्ट थे उसमें से आपको 527 दिए गए हैं। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट। ओके, सो डियर, decimal numbers on the number line. तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने नंबर लाइन बना दी। ये लिखिए, सबसे पहले हमने ड्रॉ की लाइन, दिस इज द लाइन। ओके, हैविंग टू एरो दैट इज नो एंड पॉइंट। और इस पर हमने इस तरह से देखिए नंबर रिप्रेजेंट कर दिए। ये आपका है 0 और ये आपका है 1 और इसके आगे होगा 2। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद ये तो होल नंबर है और ये भी होल नंबर है। अब ये होल नंबर के बीच के पार्ट को हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। सो दिस इज द होल नंबर और एंड दिस इज द होल नंबर। नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। समझना मेरी बात को, ये आपका 1 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स, ये 3 पार्ट्स, ये 4 पार्ट, 5 6 7 8 9 और 10। आप काउंट करके देख सकते हो, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब यहां पर जब आपका नंबर शुरू होगा, स्टार्ट होगा, तो आप यहां पे लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, यू विल राइट हियर 0.1। ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है ये 0.1 है। ये आपका होगा सेकंड नंबर का 0.2, थर्ड नंबर होगा 0.3 और ये आपका होगा 0.4, इधर आपका होगा 0.5, ये आपका होगा 0.6, नेक्स्ट होगा 0.7 और ये होगा 0.8 और इधर होगा 0.9 और इधर होगा 10। 10 का मतलब हुआ 1.0। क्योंकि पॉइंट चल रहा था तो पॉइंट तो आपको मार्क करना ही पड़ेगा। तो आप एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो देखिए यहाँ 0 लिख दिया, ये 1 आ गया। तो ये आपका हो गया 1.0 मीन्स होल नंबर।
तो आप देखो ये जो आपका होल नंबर था 0 और 1, उसके बीच में कितने डेसिमल पॉइंट होते हैं बच्चों, याद रखो 10। 10 डेसिमल नंबर्स होते हैं और वो इस तरह से होते हैं 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड सो ऑन। ठीक है। अब आपको मान लो कि 0.1 और 0.2 के बीच में भी बताना है कि कितने डेसिमल नंबर हैं, तो वो भी बता सकते हो। समझना मेरी बात को। हमने एक और नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन है और इस पर मैंने एक डिजिट मान लो यहां से कोई सिलेक्ट कर लिया 0.3। 0.3 हमने यहां पे लिख दिया 0.3 और उसके आगे कौन सा डिजिट है 0.4। बेटा इन दो नंबरों के बीच में भी 10 इक्वल पार्ट्स होंगे। 10 डेसिमल नंबर का हो गया 10। सभी पार्ट्स ये याद रखना, ऑल पार्ट शुड बी इक्वल, सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे नंबर क्या लिखा था पहले 0, तो हमने यहाँ पे 0.1 स्टार्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है 0.3, तो हम यहां से पहले यही नंबर लिखेंगे 0.3, ठीक है। और 0.3 के बाद फिर हम यहां स्टार्ट करेंगे 1। देखो 1 यहां भी आया था, यहां पे आपका क्या हो जाएगा 0.3, सभी में 0.3 आएगा और यहां पे नंबरिंग चलेगी 2, 0.3, 3, 0.3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट नंबर 4। चाहे तो आप सब में 0.3 पहले लिख लो, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3 एंड 0.3। अब इसके बाद 1 2 3 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6 7 8 9, और यहाँ पे देखो एक पार्ट ज्यादा हो गया या मैंने छोड़ दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे ही आपका 4 आएगा। ये 4 यहाँ नहीं रहेगा, 4 आपका यहाँ पे आएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0.4, ठीक है। ये 0.4 आपका नेक्स्ट डिजिट था। क्योंकि देखो 10 पार्ट्स अभी भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही पार्ट्स होते हैं किसी भी नंबर के बीच में। देयर आर ओनली 10 पार्ट्स, नॉट मोर देन 10, 10 से ज्यादा नहीं होते हैं, केवल 10 पार्ट्स ही होते हैं। तो यहाँ पे देखो 10 पार्ट्स आ गए और ये आपका नंबर क्या हो गया 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35। इस तरह से हम कोई भी नंबर को जो डेसिमल नंबर है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन नंबरों के बीच में भी 10 इक्वल पार्ट्स होंगे, आपको बता दें कैसे, चलो बता देते हैं। देखिए यहां पे हमने एक नंबर लाइन फिर से बना दी और यहाँ पे हमने कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर लिया, मान लो हमने 0.35 ले लिया, तो हमने यहाँ पे लिखा 0.35 इन द स्टार्टिंग, 0.35, और 35 के बाद में कौन सा नंबर है 36, तो वो हमने लिख लिया यहाँ पे 0.36। अब ये नंबर भी 10 इक्वल पार्ट्स, इसके बीच में भी 10 इक्वल पार्ट्स होंगे, तो वो हमने जगह बना ली 10 पार्ट्स इक्वल करने के लिए। तो हम यहाँ पे 10 इक्वल पार्ट्स करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हो गए 10 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपका जो नंबर था वो नंबर वहां पे लिख दिया जाएगा। क्या नंबर था 0.35, यहाँ भी 0.35, 0.35, 0.35, क्योंकि इसके बाद का ही नंबर आना है इसलिए ये मैं लिख देता हूं ताकि मिस्टेक ना हो और आपको समझ में आ जाए। 0.35, 0.35 और 0.35। अब यहाँ पे फिर से स्टार्ट होगा, ये तो 0.35 ही मैंने लिख दिया, यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसके बाद 10 होगा, तो 10 का मतलब यहाँ पे आ जाएगी 0
और ये हो जाएगा 5 की जगह 6, 36। ठीक है, यहाँ पे देखो 9 की जगह आप 10 लिखोगे तो 10 लिखना है क्या, नहीं लिखना है, क्या लिखोगे, 0 केवल लिखोगे, और कैरी हो जाएगा 1, वो कैरी यहाँ पे ऐड होगा, 5 में कैरी ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6, और 3 आपका पहले से था यहाँ पे, तो हो जाएगा 360। और मैंने बताया था डेसिमल के बाद 0 मीनिंगलेस होता है, तो वो 0 हट जाएगा, तो क्या बचेगा 36 ही बचेगा। तो ये आपका 10 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, या भी कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द डेसिमल 2। क्वेश्चन 2 है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। तो ये प्लेस वैल्यू टेबल होता है, यहाँ पे है आपका 19.4। तो प्लेस वैल्यू टेबल आप बना लीजिए। प्लेस वैल्यू टेबल इसको बोला जाता है, ये आपका जो मैंने अभी आपको बताया था, दिस इज द प्लेस वैल्यू टेबल। ये आपका हो जाएगा टेंस, और यहां पे होगा वंस, यहां पे होगा 10th, और यहां पे होगा 100th। तो देखिए यहाँ पे आपकी वंस यहाँ पे कितने हैं, 9 है, तो आप यहाँ पे 9 लिख दो। 10th कितने हैं, 1 है, तो यहाँ 1 लिख दो। और 10th कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं, तो यहाँ पे 4 लिख दो। और 100s है नहीं तो खाली रहने दो, या फिर यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब मान लो आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये पार्ट नंबर 1 था, पार्ट 1। पार्ट 2 में दिया हुआ है 0.3, ये हमने हटा दिया और यहाँ पे लिख दिया 0.3। तो आप देखो यहाँ पे 100 भी 0 है, 100 भी 0, वंस भी 0, यहाँ कुछ है नहीं, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 0 0। और यहाँ पे 10th कितने, 3000 है नहीं, तो इतना ही हो गया, यही इसका आंसर हो गया। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट ले लिए 10.6, वो आप पहले पार्ट की तरह कर लोगे। डी पार्ट देखिए, यहाँ पे डी पार्ट दिया हुआ है, पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी क्या है मैं आपको बता दूं, दिस इज द पार्ट नंबर डी, दैट इज 205.9। तो यहाँ पे देखिए 200 भी दिया है, तो आप यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ा देंगे, और यहाँ पे आप लिख देंगे 100, यहाँ पे आ जाएगा 100, और यहाँ एस लगता है। ठीक है, टीएच नहीं लगता है, एस लगता है। तो यहाँ पे आपने इसे बढ़ा दिया। अब आप देखिए कि यहाँ पे 100 कितने हैं, 2, टेंस कितने हैं, 0, वंस कितने हैं, 5, और 10th कितने हैं, डेसिमल के बाद है ना वो 10th होता है, तो 9। और 100 यहाँ भी नहीं है, तो आप चाहो 0 लिख दो या फिर खाली भी छोड़ सकते हो। तो ये आपका प्लेस वैल्यू में आपने फिल कर लिया। इसी तरह से अब तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद।